Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. This is the day 31 of our new course which we have started for cracking the banking examinations in the year 2020. For this you can go to the playlist created on Banking Goals channel. There you will get all the videos related to this playlist or related to this course like English, reasoning, quantitative aptitude as well as general awareness, weekly current affairs. So you can go there and watch the other videos as well. For today's discussion we have English and we'll be discussing clause test for today, and this is the fourth part I suppose for clause test, because we have already covered all the short tricks and tips for solving clause test. Clause test carries 10 marks in usually in a prelims examination of bank, and this is useful for SSC examinations also. As you all know that mostly in English paper there are the statements or the paragraphs are given from the newspaper or the editorial section of the newspaper, so it becomes very essential for you to study the editorial section of the newspaper at least, because it is very important, and from there only you get all the questions in the examination. So it becomes very essential for you to read the editorial column. We are going to conduct the videos related to editorial. We'll be picking up one editorial every day. हम लोग एक कोई पैराग्राफ या एक एडिटोरियल हम लोग न्यूज़पेपर में से उठाएंगे and we'll be discussing on that. We'll be translating it, we'll be comprehending it, we'll be seeing what it actually means, and similarly side by side we'll be learning the vocabulary as well. So for today, from today onwards, we are just trying to start it and we'll be posting that video soon after this video. So I recommend you to see that video so that you will be able to connect with English as well as you will able to understand the questions, understand the language which will be asked in the examination. So now we'll be beginning with the clause test. As I told you earlier that clause test carries 10 marks in the examination. It is very simple that one paragraph is given. एक कोई paragraph दिया रहता है, बीच बीच में fill-ups दिए रहते हैं. There are fill-ups given in the in between, and it is numbered with 1, 2, 3, 4, 5, 6 like till 10. And with every number मतलब एक number मतलब एक question होता है जिससे related 5 आपको options दिए रहते हैं, and you have to decide that which word is most appropriately, suitably should be placed in the paragraph or in that place. तो वो प्लेस पे कौन सा वर्ड मोस्ट सूटेबल होता है ये आपको देखना है. वहां पे आपको वो वर्ड जो भी करेक्ट है 5 ऑप्शंस में से वो सिलेक्ट करके वहां पे प्लेस करना है. सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर क्लॉज टेस्ट. अभी हमने डिस्कशन के लिए एक डायरेक्टली एग्जांपल लिया है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पिछले इसमें देख लिया है कि हमको किस तरीके से क्लॉज टेस्ट सॉल्व करते वक्त सारी बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है. तो ये जो आर्टिकल है ये हमने एक न्यूज़पेपर में से लिया है, एडिटोरियल कॉलम में से, क्योंकि मोस्टली आपको वही से आता है. नाउ डेज एग्जाम्स लाइक क्लरिकल एग्जामिनेशन फॉर आरआरबी एंड ऑल, मे बी वो लोग स्टोरीज देते होंगे क्लॉज टेस्ट में, एंड दे गिव स्टोरीज, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन योर लक. बट मोस्टली जो कंट्री से रिलेटेड है, जो न्यूज़ है, एजुकेशनल बोलिए, सोसाइटल बोलिए, पॉलिटिकल बोलिए, ऐसे ही मोस्टली पैराग्राफ्स दिए जाते हैं एग्जाम में. तो आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है. तो हमने वैसा ही एक कॉलम लिया है, एक पैराग्राफ लिया है, उसमें से हम लोग देखेंगे. उसमें 10 क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व कैसे करना है. सो दिस इज द पैराग्राफ. सो हमने जो ट्रिक्स देखी थी उसके हिसाब से सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ में एक्चुअली दिया क्या है. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि वो एजुकेशनल पैराग्राफ है या एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है या पॉलिटिकल है, तो हम लोग वो देखेंगे. और उसके बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो विल मूव ऑन टू द पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट विल रीड द पैराग्राफ कंप्लीटली. Disease fill up. Disease dash even global pandemics are dash new. The playbook for dealing with them is therefore is dash understood and has been honed with practices and lessons gleaned. Oh sorry, it's not leaned, it's gleaned from hard fought battles. A dash stage is dash clear-eyed recognition of the incoming threat, and in the case of COVID-19 at dash requires the unpalatable decision to lock down society. Ideally this is done with full
with full dash of how to dash the dash vulnerable members of society especially in a country such as India where so dash survive hand to mouth. ओके तो ये पैराग्राफ है. हम लोग सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ गया कि इट इज अबाउट कोविड-19 जो रिसेंट पैंडेमिक which has caused disaster in the complete world, उसके बारे में ये दिया गया है और हमको फिलअप्स देखने. अब इसमें हमको पता चल गया है कि ऑथर की टोन है कि वो डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज जस्ट इंफॉर्मेटिव. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली इसमें व्हाट यू कॉल्ड इट एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें पूछा जाता है कि ऑथर की टोन क्या है. तो ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, साथ ही साथ ऑथर ने डिसीज के बारे में बताया गया. तो हमको पता है कि डिसीज के रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी. और साथ ही साथ ये जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में दिया है तो हमको मोस्टली प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना है. ये 2-3 चीजें हमने पहले ही सॉर्ट आउट कर ली. सो लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ. डिसीज डैश इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स. डिसीज डैश. नाउ डिसीज क्या हुआ है, ठीक है. डिसीज डैश इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स. ये पूरे ग्लोबली इट हैज अफेक्टेड, इट हैज डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक विच यू कॉल्ड इट एज महामारी. एंड ऑप्शंस में हमें दिया है आउटकम, आउटब्रेक, स्प्रेड, रिजल्ट, कॉजेस. डिसीज आउटकम. डिसीज का कोई आउटकम नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता. आउटकम मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है. तो सबसे पहली चीज तो आउटकम हो ही नहीं सकता है. सेकेंड इज आउटब्रेक. तो डिसीज का आउटब्रेक जरूर हुआ है बिकॉज इट हैज स्प्रेड very dangerously everywhere and very rapidly it has spread. तो आउटब्रेक हो सकता है. थर्ड इज स्प्रेड. डिसीज स्प्रेड इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स. तो स्प्रेड इज ऑल्सो देर इज अ चांस बट डिसीज स्प्रेड नहीं होता है. डिसीज स्प्रेड ये साथ में टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है. डिसीज इज स्प्रेडिंग, डिसीज हैज स्प्रेड ऐसा बोला जा सकता है. तो स्प्रेड ये वर्ब हो जाएगा, पर यहाँ पे हमको डिसीज के साथ एक कोई नाउन चाहिए रहेगा या कोई एडजेक्टिव चाहिए रहेगा. तो डिसीज रिजल्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि आउटकम और रिजल्ट सेम ही है. डिसीज कॉजेज इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स. डिसीज कॉजेज, डिसीज की वजह से ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है, पर आई डोंट थिंक सो. डिसीज इटसेल्फ इज अ ग्लोबल पैंडेमिक. सो मोस्टली हमने सारे जो ट्राई एंड एरर मेथड से हमने सारे हटा दिए हैं. एक ही ऑप्शन हमारे तरफ बचता है, वो है आउटब्रेक. डिसीज आउटब्रेक. डिसीज आउटब्रेक इवन ग्लोबal pandemics. Okay, this is the most suitable answer here. We'll move on to the next thing. Next is disease dash even disease outbreak even global pandemics are dash new. Are rarely new? No, are rarely new नहीं हो सकता है. rarely नहीं है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी. rarely मतलब बहुत कम, कभी कभार. scarily मतलब स्केरली ये क्या होता है, डरावना. आर डरावना न्यू. नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि स्केरली आएगा क्योंकि यहाँ पे देर इज नथिंग टू फ्राइट, मतलब देर इज द थिंग टू फ्राइट अबाउट बट फ्राइटन अबाउट, बट स्केरली नहीं हो सकता है. स्केर्सली मतलब स्केर्सली न्यू क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है. फ्रीक्वेंटली मतलब हमेशा होता है, तो वो न्यू के साथ नहीं मैच करेगा क्योंकि कोई चीज नहीं है तो वो हमेशा नहीं हो सकती है. तो स्कैर्सली न्यू मतलब बहुत ही कम प्रमाण में नई चीज है. डिसीज आउटब्रेक इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स आर स्कैर्सली न्यू मतलब ये कोई नई चीज नहीं है. ओके, और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. द प्ले बुक फॉर डीलिंग विद देम इज देयरफॉर इज डैश अंडरस्टूड. ठीक है, तो जो डिसीज आउटब्रेक है, जो इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स बोल लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है. टेल यू द स्टेटमेंट मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिसीज आउटब्रेक इज मतलब डिसीज आउटब्रेक इवन ग्लोबल पैंडेमिक्स. ठीक है, जो डिसीज का आउटब्रेक होता है चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक हो आर स्कैर्सली न्यू, ये नई चीज नहीं है. सो जो प्लेबुक फॉर डीलिंग विद देम है, मतलब जो व्हाट यू कॉल इट एज प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद such pandemics is therefore is you can say is well understood, better understood, cannot understood. cannot और understood साथ में नहीं आते. सबसे पहली चीज तो cannot हट जाएगा. is needs understood नहीं, needs का यहाँ पे सबसे पहले तो tense भी मैच नहीं करेगा. is need to be understood ऐसा आ सकता था, बट वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि dealing with them is not new for them. तो नीड्स टू बी अंडरस्टूड नहीं आएगा, समझने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑलरेडी उन्हें पता है.
इज रिक्वायर्ड अंडरस्टूड नहीं, रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड आ सकता है, बट उसके साथ हमारा जो पहले का स्टेटमेंट है फिर वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि समझने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे जो बड़ी बड़ी बीमारियों का आउटब्रेक हुआ है, या फिर ऐसा कोई ग्लोबल पैंडेमिक भी जब आया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, स्कैर्सली न्यू अभी के सिचुएशन में, क्योंकि ये बहुत दिन से ये चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, और उनको ये सब कुछ डील करना पहले से आता है, उनको अच्छे से पता है। अच्छे से मतलब क्या होता है, बेटर नहीं यूज कर सकते, वेल और बेटर दो ऑप्शन है हमारे पास, तो बेटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बेटर के लिए दो चीजों का कंपैरिजन बेटर के साथ हो सकता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, बट वेल अंडरस्टूड मतलब अच्छे से पता है उनको, तो वेल इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। एंड विल मूव and has been honed with practices and lessons gleaned from hard fought battles। मतलब ये हमने कहाँ से gleaned है वो, ओके, GLEANED, तो gleaned from hard fought battles, तो जो बहुत डिफिकल्टली जो फॉट बैटल्स है, लड़ी गई लड़ाइयाँ है, ओके, तो ये कहाँ से, ये प्रैक्टिस और लेसन से हमको आया है, जो बैटल्स हमने लड़ी है उससे। तो जो इससे डील करने का, जो पैंडेमिक से डील करने का जो लेसन्स है वो अच्छे से आता है, सही तरीके से वी अंडरस्टैंड इट, बिकॉज हमने उसकी प्रैक्टिसेस लेसन से ये सीखा है, जब हमने ऐसी हार्ड जंग जीती है, लड़ी है, सॉरी जीती नहीं है, लड़ी है। नेक्स्ट इज अ डैश स्टेज इज डैश क्लियर आइड रिकॉग्निशन। अ डैश स्टेज क्या हो सकता है, अ डैश स्टेज इज डैश क्लियर आइड रिकॉग्निशन ऑफ द इनकमिंग थ्रेट एंड इन द केस ऑफ कोविड-19 एट डैश। तो क्या हो सकता है, अ लास्ट स्टेज नहीं, द लास्ट स्टेज होगा। अ सिमिलर स्टेजेस नहीं, सिमिलर नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समान कोई चीज का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। सेकंड नहीं हो सकता, फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट स्टेज इज हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या बोला है, थ्रेट है, इनकमिंग थ्रेट, डर, ओके, डर जो है। और न्यू स्टेज नहीं, पुरानी की कोई बात नहीं की है, तो न्यू की बात यहाँ पे नहीं आएगी, सेकंड की भी बात नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट की बात अब तक बताई नहीं गई है, तो इसी तरीके से बाकी सारे हट जाएंगे। लास्ट स्टेज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और बाकी स्टेजेस की बात नहीं की गई है, तो हमारा आंसर रहेगा a first stage is dash clear eyed recognition। पहली स्टेज है, क्या है, early clear eyed recognition, lately clear eyed recognition, prior तो नहीं हो सकता है सबसे पहली चीज तो, क्योंकि यहाँ पे adverb की जरूरत है। a first stage is mainly cleared eyed recognition और न्यूली क्लियर्ड आइड रिकॉग्निशन। न्यूली क्लियर्ड आइड रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो अर्ली हो सकता है, क्योंकि रिकॉग्निशन कैसा होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए, क्योंकि ये पैंडेमिक के बारे में बात किया जा रहा है, कोई बीमारी, डिसीज आउटब्रेक के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए एक अर्ली रिकॉग्निशन की जरूरत है। तो जो इनकमिंग थ्रेट के बारे में हमने आगे पढ़ा था, तो वो इनकमिंग थ्रेट के रिलेशन में हम बोल सकते हैं कि एक अर्ली, एक फर्स्ट स्टेज पे सबसे पहली स्टेज क्या हो सकती है कि हमको अर्ली रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेटली नहीं चलेगा, देर से तुम रिकॉग्नाइज करोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। प्रायर वर्ड नहीं हो सकता है, मेनली नहीं हो सकता है, न्यूली नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ वो मैच नहीं करता है। नेक्स्ट इज अ फर्स्ट स्टेज इज early clear-eyed recognition of the incoming threat, and in the case of COVID-19 at first requires the unpalatable decision to lock down society। और ये requires तो second statement हो गया, और dash stage, first stage is early clear-eyed recognition of the incoming threat, and in the case of COVID-19 की बात कर रही है, किस केस में, एटलीस्ट किस केस में, तो एटलीस्ट हो सकता है, एट फर्स्ट। इन द केस ऑफ कोविड-19 एट फर्स्ट नहीं आएगा, कि एटलीस्ट, ओके, नहीं किसी चीज में, तो पर पहला स्टेज का काम क्या है हमारा, कि अर्ली रिकॉग्निशन हो जाए, पता चल जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए अर्ली स्टेज पे। ये किस केस में, एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट इन द केस ऑफ
COVID-19, इस केस में तो करना ही है, रिक्वायर्स द अनपैलेटेबल डिसीजन टू लॉकडाउन सोसाइटी. दिस इज डन विथ फुल डैश ऑफ हाउ टू. दिस इज डन आइडियली, दिस इज डन विथ क्या, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लॉकडाउन करा है? नहीं. कंसिडरेशन के साथ किया है? हाँ, कंसिडरेशन के साथ हो सकता है. आइडियली दिस इज कॉन्फ्लिक्ट डन विथ फुल कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, कोई विरोध नहीं किया गया. कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो चीजों में एक चीज उसके ऑपोज में जाना, नहीं. आइडियली दिस इज डन विथ फुल कंसिडर नहीं आएगा. फुल के साथ यहाँ पे नाउन की जरूरत है अभी, एंड कंसिडर इज अ वर्ब. तो हमको जो हमने क्लॉसेस के ट्रिक्स में देखा था कि हमको ये भी देखना है कि वो टेंस वाइज वहां पे मैच कर रहा है कि नहीं. तो कंसिडर नहीं आएगा, कंसिडरेबली भी नहीं आएगा. एडवर्ब की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का ही पता नहीं है, तो वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब की हमको जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे कंसिडरेशन आ सकता है. आइडियली दिस इज डन विथ फुल कंसिडरेशन, मतलब सोचा गया है, पूरा सोच समझ के किया गया है. ऑफ हाउ टू हेल्प द डैश वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के मेंबर्स को हेल्प करने की बात आई है, सपोर्ट करने की बात आई है. सपोर्टिंग तो नहीं आएगा, हेल्पिंग भी नहीं आएगा, गिव भी नहीं आएगा. कैसे? आई विल टेल यू हाउ. आइडियली दिस इज टू कंसिडर, दिस इज कंसिडरेशन. आइडियली दिस इज डन विथ फुल कंसिडरेशन ऑफ हाउ टू सपोर्ट करना है, हेल्प नहीं करना है. सपोर्ट और हेल्प सेम चीजें है, पर यहाँ पे इशू क्या आ जाएगा कि किसी को मदद करने की बात नहीं आई है, सपोर्ट करना है. पीपल आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, यूजर्स, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट देम. तो यहाँ पे पूरे कंसिडरेशन किस बात का लिया गया है, पूरा ध्यान किस बात का रखा गया है कि जो सोसाइटी है, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनको मदद किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल आएगा. लास्ट वल्नरेबल ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं हो सकती है, पर यहाँ पे बात की है कि कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, कौन सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है. तो फर्स्ट वल्नरेबल ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता, लीस्ट वल्नरेबल हो सकता है. पर यहाँ पे जब डिसीज की बात की गई है, तो जबकि पता है सब बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे है, स्प्रेड बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे है, चीजें, सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे हमको पता है कि वल्नरेबिलिटी है जो ज्यादा एक्सटेंट तक है, लीस्ट में नहीं है, मोस्ट में हो सकती है. सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका कंसिडरेशन किया गया है, स्पेशली इन अ कंट्री सच एज इंडिया वेयर सो डैश सर्वाइव हैंड टू माउथ. ठीक है. मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नीचे ही हमको पता चल गया, जो हैंड टू माउथ सर्वाइव करते हैं. हैंड टू माउथ करते हैं मतलब कि जो वर्कर्स है, डेली वेज अर्नर्स है, उनकी बात यहाँ पे की गई है. तो वही मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है. लॉकडाउन किया तो गया है, पर उनका कंसिडरेशन किया गया है क्या, इसके बारे में बात की गई है. ठीक है. तो हमको उसमें पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो ऐसी डिसीजेस है, ग्लोबल पैंडेमिक्स है, उसका जो वो स्कैर्सली न्यू है. ठीक है, बहुत रेयरली न्यू है. तो जो उसकी डीलिंग है वो अच्छे से पता है, एंड जो प्रैक्टिसेस और लेसन सीखे हैं हार्ड फॉट बैटल से, मतलब जो जंग लड़ी गई है उससे पता चला है. तो सबसे पहला स्टेज क्या था कि अर्ली वार्निंग, अर्ली रिकॉग्निशन हो जाए थ्रेट का, एटलीस्ट इन द केस ऑफ कोविड-19, जिसमें जरूरत थी डिसीजन टू लॉक डाउन द सोसाइटी. एंड जो ये सब कुछ किया गया है कंसिडरेशन, मतलब दिमाग में रख के, क्या दिमाग में रख के कि हाउ टू डैश द मेंबर्स, how to support the vulnerable members of society, especially in a country such as India where so many हो सकता है, so many survive hand to mouth. so many मतलब numbers, यहाँ पे नंबर की बात कही है. much मतलब होता है, much मतलब it is infinite. ठीक है, इसमें काउंटिंग नहीं कर सकती. much, you have done much for me, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसका कोई मेजर नहीं है. पर मेनी मतलब नंबर्स है, बहुत सारे. मोस्ट सर्वाइव हैंड टू माउथ, मोस्ट की बात नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात की, पर्सन्स विच कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर्स में जो है. मोर सर्वाइव हैंड टू माउथ बहुत सारे करते हैं, नहीं हो सकता है. गुड सर्वाइव नहीं हो सकता है. तो मेनी सर्वाइव, मेनी मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, मोस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स, मेनी नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, मेनी सर्वाइव हैंड टू माउथ.
तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। एक कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको वो नंबर्स दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड 5 ऑप्शन में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। सो दिस वाज फॉर क्लास टेस्ट। Thank you so much for watching video, guys. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and family, and thank you so much.